Hello guys, warm welcome in today's video. Today we are going to solve task 1, that is map activity from Cambridge 18, and it is test 3. So this is basically a map of Central Library which is having two layouts for 20 years ago and Central Library today. Now, if we see deeply, basically 20-year ago plan is having 7 areas. In the middle, there are table chairs for sitting, obviously. And in addition, इनके पास एक रीडिंग रूम और भी है जहाँ पर कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ी जा सकती हैं, which is in lower left hand side. Then there is fiction room, then there is CD videos, computer games यानी कि audio visual room है यहाँ पर. Then further children's books in upper right hand side corner. एडल्ट नॉन फिक्शन यानी कि एडल्ट्स के लिए फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों ही हैं. एंड देर इज़ इंक्वायरी डेस्क विच इज़ फॉर टिकट्स, बुक रिटर्न्स एट्सेट्रा, मीन्स इशूइंग बोरोइंग यहाँ से हो रही है और टिकट्स भी ये बुक कर रहे हैं. एंड देन देर इज़ एंट्रेंस एट द बॉटम. So the same entrance is there after 20 years, but internally they have made so many changes. Now starting from the entrance हम अगर देखते हैं, so on the left there is a computer room, right? तो ये CDs वीडियोज़ वाला काम ख़त्म, सिर्फ कंप्यूटर रूम है. एंड देन ऑन द राइट देर इज़ अ कैफ़े यानी कि रिफ्रेशमेंट वगैरह भी अब मिलती हैं यहाँ पर. एंड देन इफ़ वी हैव फर्दर लुक ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिजिएस्ट एरिया ऑफ द लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट फिक्शंस भी हैं और इंफॉर्मेशन डेस्क भी है, सेल्फ सर्विस मशीन्स भी हैं. तो यहाँ पर सेल्फ सर्विस मशीन्स के लिए हम कियोस्क यूज़ करेंगे, right? And on top rightmost corner is your lecture room, and on the left hand side there is the biggest section of the library which has children's fiction books और storytelling भी यहाँ पर facility है. They have sofas, and then further there are on the right hand side in middle there are all reference books. फाइन. सो दिस इज़ द कंप्लीट चेंज. मीन्स कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट द लाइब्रेरी हैज़ बिकम हाईटेक एंड दे आर हैविंग एज वेल एज फैसिलिटीज़ टू रिफ्रेश ऑल्सो. तो ये भी एक इनके पास एक एमेनिटी आ गई है. एंड फर्दर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंट्रेंस चेंज नहीं हुई, इन्होंने इंटरनली चेंज किया है, सारे सेक्शंस को रीलोकेट किया है, बट एंट्रेंस हैज़ नॉट चेंज्ड. Fine. So from here then let us also go through the title, the statement of the task. The diagram below shows the floor plan of public library 20 years ago and how it looks now. यानी कि यहाँ पर तो कोई नई बात नहीं है. So it is all the same, and then we are in situation to now start writing. And for your help guys, what I'm going to do, I'll be showing you active sentences. जो मेरे active sentences होंगे वो black color से denoted होंगे. Passive sentences I'll be using maroon color. And then there will be one more type of sentence which I called sentence without verb. इसको मैं ग्रीन कलर से डिनोट करूँगा. और इसके अलावा these sentences will also be having an additional information, जो कि हमारे incomplete sentences होते हैं, हम इनको dependent clauses भी कह देते हैं, right? And then further these dependent clauses will be joined to our main sentence that can be active, passive or without verb. वो ये जुड़े होंगे हमारे मेन सेंटेंस के साथ थ्रू प्रपोजिशंस, या कभी कभी हम कुछ प्रोनाउंस वगैरह भी यूज़ करेंगे. एंड एडिशनली दिस टास्क विल ऑल्सो बी शोइंग यू कनेक्टर्स विच would be in violet color. So let us start writing. First of all is the introduction. The plan reveal करता है layout, ये active sentence बन गया. The plan reveals layout. अब किसका layout है ये हम preposition के साथ बात जोड़ते हैं. Of Central Library of 20 years before and now. So that is the introduction part. अब हम overview आज हम पहले ही लिख देते हैं. And overview is telling that the library has become now high tech, और सारे sections इन्होंने relocate कर दिए हैं. तो दो sentences बन रहे हैं और दोनों ही active sentence बन रहे हैं. The library has become high tech, has relocated all sections. और इन्होंने एक और एमिनिटी भी एक्वायर की है, तो हैज़ एक्वायर्ड कैफ़े टू रिफ्रेश रीडर्स, राइट. और इस दौरान जो इनकी एंट्रेंस ही थी ये सिर्फ जो कि अनचेंज रही.
So only entrance has remained unchanged. So now that is the overview. Now with this we can start explaining the layout of 20 years ago. तो अब इसके लिए हम कनेक्टर पहले लिख देते हैं by having fleeting glance on setup of 2 decades ago. तो 20 years ago को हम ऐसे लिख देते हैं. अब यहाँ पर हम एक्टिव सेंटेंस एक पहले बनाएंगे. It mainly comprised of 7 एरियाज. यहाँ पर मेनली 7 एरियाज थे. अब इनमें से 2 थे रीडिंग सेक्शंस. अब ये नो एक्शन सेंटेंस है. 2 वर रीडिंग सेक्शंस, यानी कि उन 2 सेक्शंस का नाम रीडिंग सेक्शंस है. 2 वर रीडिंग सेक्शंस. अब इनकी हम लोकेशन साथ के साथ हम सेमी कॉलन डाल के बता देते हैं. एक तो था 1 इन द मिडल एंड अनदर इन लेफ्ट कॉर्नर फ्रॉम एंट्रेंस, और ये वाला था फॉर रीडिंग पीरियोडिकल्स, यानी कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. अब एडिशनली अगला कनेक्टर लगाते हैं और अब हम बात करते हैं रिसेप्शन डेस्क की, जो कि इंक्वायरी डेस्क है आपका. रिसेप्शन डेस्क लाइड एट राइट फ्रॉम एंट्री, राइट. अब इसको यूज़ किया जा सकता था टिकट्स के लिए, बुक रिटर्न्स के लिए. अब यहाँ पर हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे विच कुड बी यूज्ड फॉर, और फॉर से हम इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं. टिकट बुकिंग, बुक बोरोइंग, राइट. अब आगे हम बात करते हैं एडल्ट्स के लिए और हम कनेक्टर लगाते हैं फॉर एडल्ट्स. अब फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, राइट. सो ये दोनों सिचुएटेड हैं दोनों ही तरफ सेंट्रल सिटिंग एरिया के. तो अब इनकी बात कर लेते हैं. फॉर एडल्ट्स fiction and non-fiction areas were situated on either side of central sitting, right. और बच्चों के लिए यहाँ पर है टॉप कॉर्नर्स दोनों ही, जहाँ पर कि एक तरफ बुक्स हैं और दूसरी तरफ ऑडियो विजुअल विद कंप्यूटर्स हैं लेफ्ट कॉर्नर में. तो अब ये बात कर लेते हैं. एंड फॉर किड्स टॉप कॉर्नर्स वर सेलेक्टेड, इनको चुना गया था. अब विद बुक्स इन राइट, बुक्स तो राइट वाले साइड में थी, एंड ऑडियो वीडियो विद कंप्यूटर इन लेफ्ट कॉर्नर, राइट. सो विद दिस वी हैव एक्सप्लेन्ड फर्स्ट डायग्राम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. अब हम पहले कनेक्टर लगाते हैं प्रेजेंटली. अब यहाँ पर हमने ये देखा कि अब राइट फ्रॉम द बॉटम हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं जिसको कि शिफ्ट किया गया है. तो यानी कि ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा. कंप्यूटर सेक्शन हैज़ बीन शिफ्टेड. अब ये टू शिफ्टेड टू, और टू प्रपोजिशन से बात जोड़ देते हैं कि ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आया है. शिफ्टेड टू लोअर लेफ्ट कॉर्नर. और यहाँ पर एक न्यू एडिशन है जो कि कैफ़े का है, एंड अ न्यू एडिशन जो कि कैफ़े है विच इज़ कैफ़े. अब इसकी लोकेशन बता देते हैं. इज़ इन लोअर राइट साइड. तो ये दोनों सेंटेंसेस भी जो हमारे बने ये भी नो एक्शन सेंटेंसेस बने. ओके. अब आगे चलते हैं. अब हम राइट हैंड साइड एरिया की बात करते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट बन गया है. सो अब मैं बिजीएस्ट यूज़ करूँगा तो सबसे ज़्यादा मुझे फिर इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट विल मेक इट सेल्फ सेंस. नाउ राइट साइड एरिया हैज़ बिकम बिजीएस्ट. अब यहाँ पर सेल्फ सर्विस मशीन्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था. कियोस्क में वर्ड यूज़ करूँगा. सो और कियोस्क है फॉर सेल्फ सर्विस. अब साथ साथ यहाँ पर इनकी हम लोकेशन भी बताते चलते हैं. हम ग्रामेटिकली इसको सेंटेंस से नहीं जोड़ते, हम बस ब्रैकेट में डाल देते हैं नियर कैफ़े. अब इसके अलावा वहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क है, एडल्ट फिक्शन जोन है, नेक्स्ट टू कियोस्क, ये दोनों हैं. और इसके अलावा अब एंड लेक्चर स्पेस इज इन टॉप राइट. तो लेक्चर स्पेस की भी बात आ गई है. अब यहाँ पर जो बिगेस्ट स्पेस है वो बच्चों के लिए है. देन कनेक्टर लगा के हम बात कर देते हैं. बिगेस्ट स्पेस नाउ इज फॉर चिल्ड्रन. अब इसके लिए इंफॉर्मेशन डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर इन टॉप लेफ्ट. और स्टोरी टेलिंग के लिए भी है यहाँ पर सोफ़ा, और फिक्शन एरिया भी यहाँ पर है. तो टॉप लेफ्ट में ये जो एरिया है इट इज़ फॉर स्टोरी टेलिंग हैविंग सोफ़ा सिटिंग एंड फिक्शन एरिया. ये दोनों चीज़ें यहीं पर हैं. अब एक चीज़ यहाँ पर बस एक रह जाती है जो कि है ऑल रेफरेंस बुक्स वाला एरिया, एंड दैट लाइज इन द मिडल. और अब इसकी बात कर लेते हैं. रिमेनिंग रूम ऑन लेफ्ट इन मिडल. अब इस रूम की बात कर लेते हैं. हैज़ रेफरेंस सेक्शन, यहाँ पर रेफरेंस सेक्शन है. एंड दैट वे दिस टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड इन 196
words, and this is surely a good task because it is covering all key features and it is also giving you grammatical variety. And guys, this is again 8-band task, and I hope you have understood each and everything grammatically, and there have been also many lexics to generate variety. Bye bye guys, that is all in this video. If you are appreciating this video, don't forget to like, share this video, and also don't forget to subscribe the channel by pressing bell icon. Bye bye, we'll meet in next video.